Order, order. Hello and welcome to another episode of Reporters Without Order. I'm your host Sumedha Mittal, and today we have with us Sunil Kashyap in studio. Hello, Sunil. Hi. And Jatinder Kaur is joining us from Chandigarh. Hi, Jatinder. Hi Sumedha. Hi Sunil. Yeah, so the latest issue of Caravan magazine is out, and both Sunil and Jatinder have contributed some solid reportage for this latest cover. And we'll be starting from Jatinder's piece. Jatinder, your piece is 4 deaths and no answers in Kulgam. Kashmir police silences questions as bodies emerge from the Vesha river. And I think this is one of the very, very few pieces, rare pieces, which we get to read in Delhi by a Delhi media outlet, which talks about the police excesses in Kashmir. And your story is about 4 boys who were picked up by Kashmir police between February and April 2025 this year. Yeah. And their families have been alleging that 4 of them have been killed in alleging custodial killings, torture and cover-ups by the police. So could you please walk us through what your story is about? So basically the story revolves around whatever is happening in Kashmir, rather both pre and post Pahalgam, right? Right. And we also had a story before this in the previous edition also about another boy, about another man from Bandipur in Jammu and Kashmir. Well, that was a post Pahalgam incident, right? So, whether pre or post Pahalgam, the stories revolve around what these people have been going through. The atrocities, the violations of the human rights, which go unquestioned, unanswered also for that matter, no redressals, no redressal mechanisms, no redressal demands, and even when the demands are there, they nobody pays a heed to it. So the stories, the cases in this particular story, we are talking about three Bakarwal brothers, right? Right. Who go missing. Then finally, there's a very completely not so believable story from the police side, that they drowned in this Visho Nala or Visho River, which is completely dry, right? I mean, nobody can drown there at least. And then there's another case of a boy from Kulgam who was picked up. And it's a very routine thing for the people to be rounded up in these places, and especially post Pahalgam, they were people, all the media was talking about major crackdown, lot of detentions. But what happens during these detentions? Nobody spoke about it, and then nobody expected these people that they will be basically tortured or killed by the forces, and or in these alleged custodial deaths. Families, for them, it was like the person is alive. One day he is sitting in the thana as it used to be, in the case of these so-called OGWs, and there's no criteria for being an OGW, the overground worker. And the very next day they hear and they see these headlines that so and so, the LAT commander, the top commander has been killed in an encounter. Right? There's so many eyewitnesses. That man is roaming around freely in the village for the past so many years. He has a family. He has raised kids. And suddenly he's an LET commander whom you just hunted, whom you just chased and found or whatever. So this is what the stories, are all about, and how police actually doesn't even let them approach the politicians, doesn't even let them protest, doesn't even let them, bury the bodies, and there are no post-mortem reports, there are no FIRs, there are no answers. So this is what the story is all about. There was no that detention order, PSA detention order even in these cases? No. See, on what basis the families are alleging that the accusations of police excesses in the death of these 4 cases? Yeah. See, first we need to see, Sumit, it's like post Pahalgam, while we were we knew that a conflict between India and Pakistan was very close. It was it was just that impending kind of a thing, and it could happen any day. And these were the catalytic forces which are building up to that kind of a tempo or the whatever. And then the thing is that entire India, I would say, everybody was after post the Pahalgam incident was very tragic, right? But then
criminalizing an entire state, an entire community, right? And there were incidents of assault in rest of the parts also. So people were waiting, and the state forces, I think, were also under pressure to prove. Obviously, there was a major security lapse. They couldn't find them. They couldn't apprehend that attack. They couldn't save these tourists, right? And then what next? What the next thing was the usual crackdown. And these detentions, these are not legal. It's just, it has been going on since years. People are rounded up. They're kept in thanas for days. It's not like, 1 day, 2 day or whatever. And it's so frequent. They can come to your place any day. They can summon you any day to the police station. Why? Just because, some relative of yours, they say that he joined militancy or whatever. Some informer from your village says that so and so, the militants came to their house. Whatever is the reason, nobody has ever given a reason as to why their name has been included in the list of OGWs, right? And then whenever there's a VIP moment, whenever there's an attack on the security forces or whatever incident happens, right? Whenever there's a Republic Day or Independence Day, these people are told, okay, come over to Thana. Then they stay there for days. Just imagine they're not able to lead a normal life also. Right. And then usually it never happened that, they will be killed in these custodies or they will be tortured. So many people told me that, no, it's like, for them it's a routine thing. It's okay, that we are being detained in Thana for so many days. We are labeled an OGW. We don't get a character certificate. We don't get a job, despite being educated. It has been normalized. Yeah, it is like they are helpless. They have given up. They've given up on their professions to just stay home. Out of the entire family, only one person will be possessing a phone. That also a basic normal brick phone, so that the lesser gadgets they have, lesser will be the chances of they being involved in some kind of controversy or something, or police suspecting them. So a lot of people, they gave up on their careers which they were like pursuing otherwise, and they're completely confined to the home, because you never know when will the police call you. When will be the next time that the police calls you to the police station. Right. Now in these cases, I don't know whether it was the pressure of showing up something, but these people, the routine boys, like in Bandipura case, in Kulgam case, the SOGs come, to their place, and they pick up the boy, and then the family is assured. In one case, they were even offered chai, biscuit, khana, and pakoras with the chai. That's what they told me. They said, "You please go home. We are going to send your son back home." And the very next day, they get a call from the police station saying that, come and identify your body. And they're like, you were the ones who took the boy along with you to the police station. And we thought he is safe in the custody. He was supposed to be released last night. But they thought that since it was very late at night, he was not released. He'll be released in the morning. Right. In the morning, they get a call. There's a body, floating. They found some body on that river side, and saying that you come and identify. Is it your boy? Is it your... they never lodged a missing... Bodies of all 4 boys were found in the river? All 4 boys, these are 2 separate incidents, yes. The same river, the same SP, his name is Mumtaz Bhatti, right? So in the first case, there were 3 Bakarwal brothers. They are going for attending a marriage function, get a haircut, get new clothes before they leave, and... the last they were seen is they were talking to some SOGs, somebody in the black uniform, the typical black uniform, but they don't reach the the wedding venue for which they had set course. The family calls up the police. They say that it's late. Come here in the morning. In the morning when they go there, they say that they have crossed over to Pakistan. They have taken money. Right. How does the police know that they've? This is the first answer the family gets, right? Then. Every day they go and sit in the police station. The police says, we are going to, don't worry, we are going to release them by 4 p.m. or so. And as the days, go by, they start, suspecting or apprehending the first. And then they start approaching the politicians in Jammu. Right. By the time they reach back Kashmir, the policemen are already waiting for them, abusing them as to why did they approach so-and-so MP or so politician. And they say, like, whatever you do, ultimately you have to come back to us, right? And then the days pass. Then about, I think after a month or so, maybe more,
the police calls up. See, out of these three boys, two were biological siblings. One was a first cousin of these guys, right? The bodies were mutilated, the faces were mutilated, beyond recognition for whatever reasons, right? Now, they first call up the father of the first boy, Riaz, right? How do they know that it is Riaz's body, right? And then they say that the body drowned, and I mean that area was scoured, by Gujars, by Bakarwals, by one more community, of Chopans there, and the same place they said that the body has been found, as if it's some kind of a coin. And then, the incident happened in March, Sumita. I reached there in May, right? May 5th, May 6th. Even then the river was dry. Even then the Nala was dry. We have a lot of photographs. I mean, you can simply cross over. It's all stones. There are quarries, basically. The stone mining goes on there, right? But then, nobody can drown. Not even when I had gone there. And there were raids, right? Then the second body is retrieved. And when the families protest with the second body, there's a DSP who can be seen in a body video, is kicking those women, and the baby in her lap falls down. And then there's no action there also, right? Then the third body is retrieved. And, in the first two cases also, the families are not allowed to bury or even see their faces, or even, put a coffin on their bodies, or give them new clothes. And just imagine the graveyards, the graves are exactly next to their house rather in their backyard only. But then the thing is that, they don't know, I mean, in what condition were their sons lying beneath that soil. Right. They're planning to get these bodies exhumed because they have not been given a post-mortem report. They've not been given an FIR copy also, right? No answers. And then the third boy's body is also retrieved in a similar way, right? And the families are alleging, extreme torture, either boiling water or acid. And then I saw one of the media reports, one of the doctors who was present during that post-mortem, he says that these are deaths by drowning, by suicide. How do you know? I mean, as a doctor, you can perhaps say the deaths are by drowning, but how can you say it's a suicide? Right. Right. Three boys getting ready, picking up new clothes, going for a wedding. People are waiting there. Their own brother is waiting there. They all are in touch, and suddenly they go missing. And then their bodies are retrieved after 1, 2, or 3 months. What about the media reportage on these 4 cases? Has there been media reports, and what are they claiming? So there have been reports, like in case of the fourth boy, which happened in May. Post Pahalgam, he was picked up, and he was working in Himachal. He goes back to his place, and early morning he is picked up, and this reportage it's been there. People are talking about it, but then nobody cautions the claims. I saw a lot of media houses putting the police report or the police statement saying that this boy whom they had picked up, the family version is early morning they come, they pick up the boy, take him to police station. Finally, these families are so used to, but this boy had no prior case against them. None of the boys ever had any prior cases against them. Right? So they go to the police station, they say, no, he has now been shifted to another place. So they go to that place, right, where there's a joint camp of CRPF or whatever, and the police takes them in their vehicle to that camp, right? And there the boy says that, okay, I had a tiff with my employer where he was working in Himachal before going back to his place. Maybe it's because of that, and they're going to release me. And then the policeman had offered, these chai and snacks to the family, assuring them he'll be released. At 9 o'clock, the family calls him up, and he says that I'm going to be released in another hour or two. They're waiting for the DSP. And, the family says it's too late. He says, no, they're going to drop me in their gari.
early morning they get to see, the workers who come to these riverbeds to basically mine the stones. Right. They say that a body has been seen and it is Imtiaz's body. The family doesn't believe them. Family gets a call, and rather they tell them that no, we are not coming for identification because our son is safe in the police station, right? Now, but the media reports now, then the police says no, we were taking him to. He knew a militant hideout. He was taking us there, and then they show a drone coverage, right, wherein a man is wearing a life jacket or a vest, a neon orange colored or something. And he is showing to be jumping into those waterfalls. And, the place where the body was found, right, it's nowhere close to the way it's being shown in the video. And, why would there be a drone coverage, And he was taking them to a militant hideout, was allowed and to roam around freely in the jungle. A drone was surveying him, and then he falls into the water and with a life jacket, and he dies. So, but the media reports are not talking about it. These things, yeah. About the suspicious. Yeah, rather they were too keen on giving the doctors, even in the other case, doctors quotes that, he died, they died of suicide. 3 different men die of a suicide. And in this case, in Imtiaz's case also, there's a very simple reportage that so-and-so case has happened and police is saying so. And there's an equal coverage given to maybe the family, little less, more to the police. But nobody questions. Right. Nobody questions these guys. Jatinder, you have been constantly covering, doing stories on police excesses in Jammu and Kashmir. I wanted to check with you, how tough do you find to get access to families in Kashmir? Because every time, you try to reach out to them, there is a lack of trust from their side on Delhi media, and rightly so. So do you also face these kind of challenges? And I mean, in any story, a reporter can only bring about only 5 or 2 or 10 up to 6 or these such number of such cases, and it's the question keeps coming to my mind. We don't know the bigger picture. We don't know how many such police excesses are taking place in Kashmir. See, Sumita, the challenges are from 2 fronts, right? Yeah. Number one, the families, right, who already have suffered a lot and they are scared of the forces for further damage, damage, right? Second is they don't trust the media guys at all. There have been instances when people refused to talk to me point blank, saying कि madam बहुत हो गया, बहुत सारे लोग आए आपके गोदी मीडिया वाले और आपके ऐसे वाले लोग, and I have to tell them that no, I'm not from that media house. At times I have to tell them a name, say that please Google, please check हमारा organization का. No, but they are like, हमें पता है, so many people came and they asked us, but they never showed what we told them. And they, I was shocked, when they say that. They said, बहुत हो गया हमारे साथ जो होना था, whatever had to happen has happened. We don't want anybody. We know why you have come here for. You just want to, basically justify the government action when their houses are being demolished. Like we did a case of Kupwada, Kalarus, wherein, the house was demolished while that man, because of whom they say that they have demolished the house, he left the house, he left the family 35 years back as a child. Nobody knows about him, right? But then the thing is that man, they were like, they were so done in a lot of cases where their boys have been killed, saying that they were alleged militants. Their houses have also been demolished. They're like, ab kya karne aaye ho? And then they say, we know why have you come here, right? We are not going to talk to you. And second is also the fear of the forces. As I said, this is a very strange thing, you should feel safe the moment you see people in uniform, right? You should feel safe. They should be your safe space. They should be your safe sightings. But in Jammu and Kashmir, what happens at the very sight of somebody in uniform, somebody, basically asking you to stop, somebody telling you to stop at a naka or anything, it, gives flutters in people's hearts. I mean, they were like, madam, wo dekho samne wo bahut sara aaj army hai, bahut sara. I said, army hai to acha baat hai na, you are safe. No, ma'am, we are not safe. And the moment they will stop you at some naka, like, pata nahi kya ho gaya, madam, bas bach ke nikal jaye. So, there are multiple fronts. And then you can't trust.
You Right. can't trust people because a lot of people are informers. That is how perhaps they are surviving. And a lot of people out of the fear. You really can't trust who is. I mean, in one case, in Altaf Lali's case, which I highlighted for Bandipur, his nephew told me, I have messages which says, "Don't come here. There's a lot of army here," and kept on discouraging me from going there. It's not safe, he says. And when I went there, everything was fine. The family was waiting for me. While this boy is sitting in the same house, he was continuously punching the messages that don't come here. Right. So, I mean, I wish we were doing more such stories and, like not all bringing out this side of Kashmir as well. And we were more courageous as media outlets to do these kind of stories. More power to you and Caravan. I mean, कि ऐसी इक्की दुक्की स्टोरी दिख जाती है जब इतनी सारी स्टोरीज के बीच में से. I'm glad they encourage and they are able to carry out these stories without any fear or without any censorship. People are waiting to be covered, Sumita. Right. People are waiting that somebody comes and highlights their plight. Issue. तो अभी हम सुनील अब आपकी स्टोरी पे आते हैं. Reclaiming Buddha, the Bodh Gaya protest is a fresh chapter in Buddhist assertion. I think हम ये स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप ही समझाएं कि ये प्रोटेस्ट किधर चल रहा है, किस मुद्दे को लेके चल रहा है और इसका क्या बैकग्राउंड है. दरअसल 1949 में एक जो है बेटी एक्ट बना था, बोध गया टेम्पल एक्ट. बोध गया एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये माना जाता है कि मतलब तमाम लोगों ने किया है कि भगवान बुद्ध को वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था. और उसी जगह पे वो जो है मंदिर है भगवान बुद्ध का जो है, और उसी को लेके बेटी एक्ट बना था, बोध गया टेम्पल एक्ट बना था. 1949 में वो बना था और उसकी अध्यक्षता की थी हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने. दरअसल ये मूवमेंट बहुत पुराना है. एक बहुत पुराने जो है बौद्ध भिक्षु थे जो है नागरिक धम्मपाल, उन्होंने 1890 में इसको लेके केस किया था. दरअसल 1500 अगर हम और थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1590 के आसपास में वहाँ घमंडीगिरी एक महाराज आए थे जिन्होंने वहाँ पे सेव मठ की जो है स्थापना की थी उस जगह पे, और इस सारी जगह को ले लिया था. फिर इसको खोजा वहाँ पे ह्वेंग सांग ने. ह्वेंग सांग जो चाइनीज यात्री थे, जब वो भारत आए थे तो उन्होंने इसको खोजा था कि ये तो वो प्लेस है जहाँ पे भगवान बुद्ध को जो है, क्योंकि उससे पहले अशोक ने यहाँ एक बौद्ध विहार बनवाया था उनके करीब 200-300 साल बाद जो है गौतम बुद्ध के. तो उसके बाद में जब ये हुआ और वो सारी चीज़ों पे उस पर पूरी जगह पे वहाँ पे कब्जा कर लिया. कभी कभी लोग इक्का दुक्का वहाँ आते थे जैसे जैसे लोगों को पता चलता था. लेकिन जब नागरिक धम्मपाल यहाँ पे आए तो दरअसल जो उस समय के जो वायसराय थे वो कर्नल वारिस थे. उन्होंने उनको कहा था कि वो आए और उसको मतलब देखने के लिए चीज़ें की देखे. तो उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जीत भी गए थे. उस समय पे जो केस था 1895 के आसपास में वो केस जीत गए थे. लेकिन उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट थी, बंगाल का पार्ट हुआ करता था ये जो है, तो उसमें वो केस हार गए थे वहाँ पे. तो ये फिर से उनकी चीज़ें चली गई. इसको लेके समय समय पे 1920 में ही महात्मा गांधी ने एक जो है बौद्ध स्थल का जो है उद्घाटन किया था कलकत्ता के अंदर. तो तब उन्होंने भी कहा भी था कि मतलब जो है कि हम बोध गया को भी देखेंगे, मतलब बोध गया के बारे में भी सोचा जाएगा कि उसको कैसे करना है. और उसी को लेके फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेटी एक्ट समिति बनाई जो इसमें राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की. तो इसको लेके एक मूवमेंट था, समय समय पे होता रहा और तमाम जो वहाँ के बौद्ध भिक्षुक थे वो आते रहे. असलियत में बेटी एक्ट में ये था कि इसके जो है 9 सदस्य होंगे और इसका जो गया का डीएम होगा वो उसका अध्यक्ष होगा. 4 बौद्धिस्ट होंगे और 4 हिंदू होंगे. दूसरा उसमें ये भी था कि उसमें ये भी एक है कि उसमें हिंदू रीति रिवाज से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी. तो उसको लेके बड़ा ऑब्जेक्शन है लोगों का. एक तो ये ऑब्जेक्शन है कि जैसे मक्का मदीना है, जैसे जो है मतलब तमाम गुरुद्वारे हैं या क्रिश्चियनों के जो है गिरजाघर है, इसी तरीके से बौद्धों का भी जो है वो बौद्धों के पास होना चाहिए. उसमें हिंदू क्यों है? क्योंकि ये परस्पर लड़ाई रही है. तो उसको लेके वो लोग कई बार मूवमेंट किए, लेकिन ये पहली बार मूवमेंट था कि जो इस समय बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बहुत सारी जगह ली इस आंदोलन ने.
इस आंदोलन से वो तमाम जिलों में जगह गई। अब मसला ये आता है कि ये मूवमेंट अभी जो शुरू हुआ इसकी वजह क्या हुई, कि मतलब एकाएक ये जो है 2025 में कैसे ये मूवमेंट बनना शुरू हुआ। उसके पहले भी लोग जो है कई बार कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट का क्या था कि बीटी एक्ट में ये भी है कि इस जो बोधगया टेम्पल एक्ट है इसको लेके आप जो है कोर्ट नहीं आ सकते, इसका कोई भी समाधान होगा तो बिहार विधानसभा से होगा। एक बार 1990 में लालू जी की सरकार में इसको लेके एक प्रस्ताव लाया गया था चीज़ों को बदलने के लिए, लेकिन वो टेबल होने के बाद में उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, तो वो फिर वापसी हो गया था। फिर उसके बाद समय समय पे 2002 में भी एक बार तो खुद जो है अब्दुल कलाम ने इसको लेके बातचीत की थी कि इस पे कुछ होना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है, वो भी मानते थे इस बात को, कई जगह वो है उनका जो है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो एकाएक क्या हुआ कि अभी 2014 में जब बिहार की पॉलिटिक्स बदल रही थी, बिहार की पॉलिटिक्स का सिनेरियो बदल रहा था, कि क्या हुआ कि नीतीश जी एनडीए के जो है घटक दल नहीं रहे, तो उन्होंने 2014 का लोकसभा इलेक्शन जो है अकेले लड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार के अंदर में पॉलिटिकल सिनेरियो बदला। जब वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो बदला तो वहाँ पे क्या था कि जो है उस सिनेरियो में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गए। जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए तो अब थोड़ा सा बीजेपी को लग रहा था या संघ के लोगों को लग रहा था कि अब कुछ चीज़ें करने के लिए तो पहली बार जो है एक संगठन का निर्माण किया जो है इंद्रेश कुमार ने, और वहाँ पे वो पहली बार वहाँ पे गए, बोधगया टेम्पल पे गए। अच्छा। और उन्होंने संगदान और चीवरदान करना शुरू किया और सेमिनार कराना शुरू किया। अच्छा। 2014 में ये पहली बार होता, अब तक वो 10 साल में लगातार वो करते रहे हैं संघ के लोग। और वो वहाँ पे जो है जो भी उस समय पे राज्यपाल होते थे सभी राज्यपाल को ले जाके उसको हिंदू विधि विधान से जो है पूजा पाठ कराना शुरू करते हैं। तो इसको लेके रिक्लेम करने की कोशिश की है। हाँ, मतलब ये दरअसल बौद्ध धर्म का एक चीज है ना कि जैसे कि दो चीजें यहाँ पे एक साथ चल रही है। एक तो बाबा साहब के बौद्ध धर्म आने के बाद में जो नव बौद्धायन है उसका नंबर बहुत बड़ा है। आप जब पाएंगे कि बिहार में जो अभी जातिगत सर्वे वहाँ पे हुआ जो है सर्वे हुआ उसमें नंबर 1,10,000 हो गया। तो यानी कि 1 लाख नंबर पिछले 10 सालों में मतलब जो है 15 सालों के आसपास में बढ़ गया है। अभी जो ये आया कास्ट सर्वे जो आया है बिहार का, तो वहाँ पे भी नंबर बढ़ रहा है। दूसरा और भी जैसे उसी बीच में कांचीराम ने बहुत सारे मूवमेंट किए, बसपा का मूवमेंट रहा, बसपा पूरा का पूरा उस धर्म से ही चीज़ें लेके आई और उसके जितने भी वो अपने योजनाएं ला रही है, चाहे प्रबुद्ध नगर लाए, चाहे महामाया नगर लाए, चाहे बहुजन शब्द का जो इस्तेमाल है वो सारा का सारा बौद्ध धर्म से आया हुआ था। तो वो नंबर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो नव बौद्धायन का बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो उस वजह से क्या था कि यहाँ पे ये मूवमेंट दिखता भी है। और एक दूसरा कि उत्तर प्रदेश में एक जाति है जो शाक्य मौर्य है, वो अपने आप को गौतम बुद्ध से अटैच कर लेते हैं कि वो हमारी कास्ट के थे तो उनसे वो जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। उसी बीच में और भी 2-3 जगह पे चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे बदायूं में क्या हुआ कि बदायूं में एक बौद्ध विहार था और वहाँ पे जो है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पे गणेश की मूर्ति रख दी और कहा कि नहीं यहाँ तो गणेश जी थे और ये हमारा है। तो ये जैसे ये चीज़ ये चल रही थी। अभी आप पाएंगे जब ये पूरा का पूरा जो है राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा है इधर बीच में जब वो बन रहा है, तो उधर बौद्धों ने भी अपना क्लेम शुरू कर दिया कि अभी आप मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोज रहे हैं, अगर मंदिर के नीचे कुछ मिलेगा तो बौद्धों के स्थली मिलेगी सारी की सारी। तो वो उनकी रिक्लेमिंग चल रही है, मतलब वो सारी जगह वो सारी बात कर रहे हैं कि, और ये सब वो कह रहे हैं कि भाई साकेत भी हमारा था इस पे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है सुमित रतन बनते थे उन पे एक जुर्माना भी लगाया था जब उन्होंने इस पे कोर्ट में केस दाखिल किया था इसको लेकर। तो ये सारे मूवमेंट एक साथ चल रहे हैं और इसमें जो है जैसे क्या है कि संघ के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस्लाम या क्रिश्चियन नहीं है, बौद्ध उसके लिए बड़ी चुनौती है। ये आप हमेशा कहते हैं कि संघ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बौद्ध धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक दो पहली चीज है कि उसमें दलितों का नंबर बाबा साहब के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। दूसरा वो 3 चीजें बहुत नॉर्मली सी लोगों में आ जाती है, वो है ज्ञानशील, तार्किकता। तो वो जो तार्किकता है कि हर चीज पे तर्क करना, तो वो संघ की चुनौती देती है। तो तार्किकता का जो मामला है बौद्ध धर्म का वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि
आप सोचिए समझिए उसके बाद मानिए। आप ऐसे कैसे मान लें किसी चीज़ को कि ये चीज़ है कि नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में तो आप बहुत सारी चीज़ों पे सवाल ही खड़ा नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने भी लोग, जैसे क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के बाद में और इन सारी चीज़ों के बाद में जितने लोग जो है जुड़े उससे जो है, और हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में ही हों, लेकिन उनकी आस्था और समर्पण और जो त्याग है वो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे बहुत लोग हैं मतलब जिसमें, और ये सारे लोग इस मूवमेंट में जुड़े, जो कि इधर ये मूवमेंट शुरू होता है कि भाई हमारे यहाँ क्या हुआ कि उसकी 2-3 वीडियो और वायरल हुई इसकी, कि एक ब्राह्मण है और वो जो है जो गौतम बुद्ध की 5 मूर्तियाँ उनको बता रहे कि देखिए 5 पांडव हैं और ये 5 पांडव थे। तो वो उन्हें ये कह रहे कि हमारे इतिहास को हिंदू धर्म से जोड़कर इसे जो है बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और जबकि सबको पता है कि जो है, और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, जितने भी बौद्धिस्ट देश है वो सारे के सारे बौद्ध गया आते हैं। तो एक तरफ हम पूरी दुनिया में जाके घूम घूम के बौद्ध के बारे में कुछ और बताते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसके अंदर में जो है हम बौद्ध स्थलों को हम खुद ही उनको हिंदू रिक्लेम करने के वो कर रहे हैं, और उसमें जो है उस तरह के जो हिंदू कर्म कांड है वो सारे के सारे करा रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे चल रही है। तो इसको लेके जैसे 1920 के आसपास में जो सर ये थे अर्नोल्ड थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल, इस पे एक लंबा आर्टिकल उस समय पे लिखा था। उन्होंने उस समय भी मतलब ये चीज़ें चल रही थी, धीरे 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 जो है हो रही थी, लेकिन वो एक बड़ा मूवमेंट कभी बन नहीं पा रही थी जो अभी आके बन पाई। और एक दूसरा कि बौद्धों को जो सबसे ज़्यादा उसमें चिढ़ है वो ये है कि उसके अंदर में आप पितृपक्ष कराते हैं। पितृपक्ष क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म में सबसे लास्ट का संस्कार जो है पिंडदान माना जाता है, सॉरी, तो वो पितृपक्ष में पिंडदान होता है। अच्छा। तो आप जब तक आप अपने किसी भी मरे हुए आदमी का वहाँ पे नहीं करेंगे तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, ये माना जाता है। दरअसल ये कहानी जो है ये जुड़ी हुई है राम से ही, ये कहानी जुड़ी हुई है कि वो दशरथ का पिंडदान करने के लिए वहाँ पे गए थे और सीता जी ने वहाँ पे पिंडदान दशरथ जी का कर दिया था। तो उसको लेके, और दरअसल बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक ये कहानी है क्योंकि उससे पहले भी एक कहानी है कि गया नाम का एक राक्षस असुर था जिसको वरदान था वो जिधर भी पैर करके, वो एक लंबी सी कहानी है जो उस तरह की चीज़ है। वही बात है कि आप इन बहुत सारी कहानियों पे तार्किक तत्व से तो बात नहीं कर सकते। तो वो हिंदू मैथोलॉजी की जो भी कहानियाँ है शहर को लेके वो सारी की सारी है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए ये आप हमारा ये बौद्ध विहार छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कहीं कुछ भी करिए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दरअसल हमारे बौद्ध विहार में आप मत करिए सारी की सारी चीज़ें, आप यहाँ पे मत करिए। तो वो एक एरिया है जिसमें वो बात करते हैं। दरअसल बौद्ध विहार में जैसे एंटर करेंगे तो उसके उस के गेट के पास ही दुर्गा जी का मंदिर है और अंदर भी मंदिर है। वो कहते हैं कि एक लैंप पोस्ट था जहाँ पे बौद्ध के सामने में दिया रखा जाता था, जिससे कि एक प्रकाश का जो सिंबल है कि चारों तरफ उस कमरे में, उसको घिस घिस के उन लोगों ने शिवलिंग बना दिया वहाँ पे। तो अभी जैसे ये जो थे आरिफ मोहम्मद जो गए थे, तो वो गए तो जाके वो हिंदू रीति रिवाज से शादी की, तब वो जो हिंदू रीति रिवाज से जाए वहाँ पे वो किए पूजा पाठ किए। तो वो क्या है कि उन्हें और भी थोड़ा लगा कि आप तो मुस्लिम हैं, आपके यहाँ तो पूजा पाठ का वैसा भी नहीं होता और आप सब कुछ जानते समझते हो, फिर इस तरह से कर रहे हैं। तो उस पर और बवाल हुआ। वो उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किया, जबकि वो बुद्ध पूर्णिमा उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो उनका जो है त्रिपद माना जाता है कि मतलब उसी दिन जो है गौतम बुद्ध पैदा हुए, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन जो है उनकी डेथ हुई। तो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उसी दिन वो जाके पूजा करवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वहाँ पे जो है। तो उसको लेके उनको बहुत दिक्कत हुई। तो क्या हिंदू राइट विंग फोर्सेस ने, चाहे संघ हो या बीजेपी हो, ये चीज़ करके अपनी मुश्किलें बढ़ा नहीं ली हैं? जैसे क्या है कि अभी आप देखिएगा, जैसे कि इस पूरी घटना को लेके, चाहे आप मायावती को पाइए, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद को पाइए, इवन राजेंद्र पाल गौतम को लीजिए, चाहे वो जो है अम्बेडकर है, प्रकाश अम्बेडकर, उनको लीजिए, जितने भी दलित लीडर थे वो सब के सब उस मूवमेंट के साथ में खड़े हुए। सारे लोग खड़े हुए, सबने इसको लेके ट्वीट किया। और ये एक प्रेशर भी है क्योंकि दलितों के अंदर जो बौद्धिज्म की चेतना है वो बढ़ी है। और इसकी एक वजह ये रही है कि कांशीराम में और अम्बेडकर में बस एक अंतर था। अम्बेडकर क्या हुआ कि अम्बेडकर ने सारे जो त्योहार थे, हिंदू त्योहार, उनको खारिज कर दिया कि ये ब्राह्मणिकल है। उन्होंने सबको खा के खारिज कर दिया। और इसमें कांशीराम ने एक नया चीज़ किया कि कांशीराम ने क्या कि इस पर रिक्लेम कर दिया। वो बोलते हैं कि ये जो दशहरा है ये विजयदशमी है। वो जो दीपावली को बोलते हैं कि इस दिन जो है गौतम बुद्ध लौट के अपने घर आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये त्योहार तो हमारे हैं,
राइट। तो अभी क्या है कि वो सारे के सारे त्योहार वो लोग मनाते हैं, लेकिन वो अपने कह के इसको मनाते हैं। तो क्या था कि उससे चीज़ें और बढ़ी तेजी से, आपको उसके प्रति उदासीन आई। तो ये चीज़ें जो है कांसीराम के बाद में ये मूवमेंट बहुत तेज हुए हैं। कांसीराम जब बहुत सारे नायक लेके आ रहे हैं तो उसमें वो त्योहारों को भी लेके आ रहे हैं, तो वो इन पे भी काम कर रहे हैं और वो सब बौद्ध धर्म से जोड़ के उन त्योहारों को मना रहे हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, मतलब ये सारे के सारे त्योहार उनको कर रहे हैं। तो ये जो रिक्लेमिंग थी, इसकी वजह से एक मूवमेंट जो है खड़ा हुआ। और आप जैसे पाएंगे कि बसपा की सरकार में जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो आप देखिए कि बौद्ध धर्म के नाम पे आ रही है। बिल्कुल। चाहे वो शामली का नाम प्रबुद्ध नगर वो रखे, चाहे गौतम बुद्ध नगर बने, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बने, तो ये सारा का सारा, चाहे परिवर्तनशील चौक बने, मतलब जो है विनयशील चौक या परिवर्तनशील, ऐसे ऐसे नाम जो लेके आ रहे हैं वो सब बौद्ध धर्म से चीजें हो रही थी। तो क्या है कि उन्हें ये तो पता है कि अगर ये मूवमेंट बढ़ता है तो क्योंकि उसके पास अब एक वोट नंबर भी है और वो बहुत बड़ा वोट नंबर है, और उसके साथ में मतलब जैसे वो जो बहुजन मूवमेंट से वो अखिलेश यादव, चाहे उसको पीडीए कहें या तमाम लोग उसको कुछ और कहें, वो क्या है कि वो एक दलितों बैकवर्डों की लामबंदी बनती है। तो इससे उनकी घबराहट है कि अगर ये मूवमेंट बनेगा तो ये जो है दो तरह से आपके पास, एक तो हिंदू धर्म से लोग खिसक जाएंगे और दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल भी आपको जो है ये चुनौती दे देगा। तो आप दो तरह से इसमें चले जाएंगे। तो इसलिए एक तरीके से जबरदस्ती कर रहे हैं हम, मतलब काइंड ऑफ, जैसे क्या है कि वो धीरे धीरे, जैसे वैसी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वो है कि कैसे फोर्स करना अपने बिलीव्स को, अपने, हाँ, मतलब उसको उसमें उसको पैदा करना उस चीज़ों को। जैसे अभी मतलब यूपी में तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो कि मंदिरों को आपने रिनोवेट कराया, बहुत सारे मंदिरों को रिनोवेट कराया, एक ही जो है योजना आपने, लेकिन वैसा बौद्ध धर्म या और बाकी के धर्मों को लेके नहीं किया है उस तरह की चीज़ों को। जैसे वो आपको काम भर का है कि आपको ज़रूरत पड़ रही तो आप उसे ले रहे हैं, तो आप वो तो गौतम बुद्ध की अस्थियाँ भी मंगाएंगे, आप वो करेंगे तो जो है आप बौद्ध यात्राएं भी निकाल लेंगे। जब 14 में इनकी सरकार बनी थी तो सबसे पहले बौद्ध यात्रा सारनाथ से की थी, और जो राजनाथ सिंह था उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। तो ये वो जितना काम भर का है उतना उसको करना है, लेकिन आइडिया के तौर पे वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो नहीं चाहते कि इस आइडिया को बहुत ज़्यादा स्प्रेड, हाँ, मतलब वो कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज उसकी जो विवेकशीलता और तार्किकता है, वही अपने आप में, वो अपने आप में चैलेंज कर देगी उसको। राइट। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह के मूवमेंट बढ़े या इस तरह की चीज़ें आगे जाए। अभी आप देखेंगे ना, जैसे कि जो सारे के सारे मूवमेंट चल रहे हैं, जिनको आप चाहे जातिगत जनगणना का मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट है, ये सब आए उसी रूट से हैं। ये संविधान का जो मूवमेंट रहा, ये सारे वही मूवमेंट है जो कांसीराम लेके आ रहा था। अभी इसमें कांग्रेस को कैसे देख सकते हैं? कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस हर वक्त, अभी राहुल गांधी संविधान की बचाव की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि वो प्रो दलित हैं, वो आजकल आप उनका यूट्यूब देखिए, आप वो उसी तरीके के वीडियोस बना रहे हैं। तो जब ये मूवमेंट एक चल रहा है, जब वो अपने आप को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं एक हिंदुत्व के असर्शन से, तब इस टाइम पे कांग्रेस का क्या रोल रहा है? कांग्रेस के लिए तो ये मतलब बहुत अच्छा होगा इस मूवमेंट को बैक करना और इसको और एक अलग लेवल पे लेके जाना। लेकिन इसमें एक चीज़ रही है कि जैसे कि इस मूवमेंट के साथ में आरजेडी का तो खैर एक विधायक था, लेकिन पार्टी नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी। वैसे तो बाकी बहुजन पार्टियां तो सारी थी, जितनी भी दलित आइडिया की पार्टियां, तो सारे सबके लीडर थे। तो ये बनता था कि आप इस मूवमेंट के साथ में खड़े होते और आप इसको वो करते। जब आप बहुत सीधे सीधे हिंदुत्व और संघ पर अटैक करते हैं, तो तब ये मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए सबसे भारी ब्रह्मास्त्र आपके लिए, मतलब हो ये सकता एक है। बड़ी रोशनी है, जिसकी रोशनी में आप बहुत सारे समाज को समेट भी सकते हैं, जिसके पास वोट भी है और जिसके पास में एक वैचारिक समझ भी है। और उसका वोट आज के टाइम आज भी काफी बढ़ता है, आज भी वो बसपा का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मतलब हम दिल्ली इलेक्शंस में भी इसकी बात कर रहे थे, लेकिन इस बार भी उसका वोट चर्चा कम था, बट एक अच्छा वोट शेयर था। मतलब है चीजें वहाँ पे भी है। ये जैसे यहाँ पे बात हुई ना कि जब वो दिल्ली के इलेक्शन में आया कि आप पुजारियों को पैसा देंगे, तो उसके बाद एक मूवमेंट अपने आप आ गया था कि ये आप भाई जो वाल्मीकि मंदिर और ये बौद्धिस्ट मठों के लिए उनके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक वो ना कि वो पूरी एक चेतना तो है उन सबकी, और वो बड़ी चेतना है कि मतलब उनको पता कि करना क्या है। तो इस चेतना से तो बीजेपी डरती है कि क्योंकि उसे पता है कि उनके लिए ये बड़ी चुनौती हो जाएगी। लेकिन
साबित हो सकता है? सवाल ये है ना कि कांग्रेस में भी, जैसे कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है कि वो उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। दरअसल सवाल ये है कि कांग्रेस का कांसीराम के साथ में खड़ा होना, वो कभी दिखाएगी अपने आप को कि मैं कांसीराम के आइडिया पे चल रही हूँ, वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। मतलब वो आएंगे ही नहीं उस आइडिया पे, तो वो उनकी वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जैसे होना चाहिए था, राहुल गांधी को इस पे बात करनी चाहिए थी उन लोगों से। हालांकि वो गए, जब वो बिहार गए तो वो वहाँ पे गए थे, बाद के दिनों में जो है बोध गया गए थे, लेकिन उस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था कि ये बहुत जरूरी है। उन्होंने उधर विजिट में क्या किया था? वो गए थे वहाँ पे इस मूवमेंट, मतलब उसमें बोध गया मंदिर पे होते हुए, तो वो इनका कार्यक्रम था वहाँ पे राजगिरी में। तो क्योंकि वो रूट में था तो आप बोध गया मंदिर होते हुए आप उधर बढ़े थे आगे। अगर आप किसी के फेथ, उनके आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट करते तो आप पे वो भी कैसे भरोसा करेंगे इलेक्टोरली भी? जबकि आपको पता है कि यहाँ नहीं तो मतलब महाराष्ट्र के महारों में तो बड़ा आंदोलन रहा। नागपुर में उनकी बड़ी सभा हुई थी 6 अप्रैल को, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। तो नागपुर में कांग्रेस का काफी खराब प्रदर्शन था। मतलब ये, और वो आंदोलन तो इलेक्शन से पहले ही चल रहा था, तब आप उसमें साथ हो सकते थे उस आंदोलन के, तो शायद उसका कुछ फायदा भी मिलता आपको। और बल्कि जब आप बात कर रहे हैं कि आइडिया के तौर पे जब आप बार बार संघ को टारगेट करते हैं, तब तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए सबसे जो बेहतरीन हथियार है वो आपके लिए बौद्ध धर्म है। मतलब समाज को सुधारने के लिए भी, समाज की बात करने के लिए भी वो इस मतलब जिस बात को आप बार बार नफरती समय कहते हैं, उस नफरती समय में गौतम बुद्ध से अच्छे विचार किसी के नहीं हो सकते। बिल्कुल। और उसमें वो लोग एक मूवमेंट कर रहे हैं कि भाई मतलब ये मुस्लिम या क्रिश्चियन को लेके ही नहीं चीज़ें हो रही, कि बौद्धों को लेके भी हो रही, कि ये हमें भी ले लेना चाहते हैं, ये हमें भी अपने में समाहित कर लेना चाहते हैं। आई थिंक ये काफ़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस को इस पे बात करनी चाहिए थी और राहुल गांधी को इस पे बात करनी चाहिए थी, स्पेशली तब जब वो हर वक्त दलित की बात कर रहे हैं। मतलब जब आप दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप देने की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो फिर आपके मतलब ये सब क्लेम्स काफी शैलो भी लग सकते हैं लोगों को। हाँ, मतलब वो जो है तो उसमें बनता था, लेकिन शायद मुझे लगा कि वैसा हो नहीं पाया। हाँ, पता नहीं, शायद क्या किसी कांग्रेस लीडर ने भी अगर इसके ऊपर बयान दिया है तो नहीं, कांग्रेस लीडर का तो कोई बयान नहीं, मतलब वो जैसे वो है भी तो, क्योंकि अभी इन्होंने जो है एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया राजेंद्र पाल गौतम को, लेकिन वो उससे पहले उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, मतलब वो कांग्रेस में जाने से पहले, क्योंकि वो दरअसल वो हम तो पहले भी इस पे बात किए थे, उनको जब आम आदमी पार्टी ने निकाला ही उसी के लिए था कि उन्होंने एक जो है सामूहिक बौद्ध जो है धर्म एक्सेप्ट करने के लिए सभा की थी। और उसका गुजरात इलेक्शन में बुरा असर आया था आम आदमी पार्टी ने, तो उसी से वो पार्टी छोड़ दिए थे। तो वो मूवमेंट से जुड़े रहे, अभी भी है मूवमेंट के साथ में। और उन्होंने बहुत सारी सभाएं भी की इस मूवमेंट को लेकर, बल्कि दिल्ली में किया है, जंतर मंतर पे एक बड़ा सम्मेलन किया उन सारे लोगों ने मिलके। तो वो, लेकिन वो अपनी कास्ट लोकेशन की वजह से वहाँ पे है, वो पार्टी की वजह से वहाँ पे बिल्कुल, ये बात आपने सही बोली कि वो पार्टी की तरफ से कोई गाइड नहीं, तो पार्टी को वहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो और ये सबसे ज्यादा बनता है कि राहुल गांधी को वहाँ पे होना चाहिए था, तो राहुल गांधी वहाँ पे नहीं हुए। तो थैंक यू सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका कोई रिकमेंडेशन, जो कोई स्टोरी पढ़नी चाहिए हमारे ऑडियंसेस को? तो मैं तो कहूँगा कि आप ही की जो चुनाव पे आई है तो वो स्टोरी पढ़नी चाहिए, जो कि आज के समय की बहुत मतलब चीज़ें हैं कि कैसे इलेक्शन को समझा जाए, इस बुरे दौर में किस तरीके से इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के साथ में किस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, और इसमें कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती है और कितनी तरह की जो हम नहीं सोच सकते किस तरह से जो है, और उसके कई एंगल हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो इलेक्शन की आपकी 3-4 कहानियां हैं वो देखनी चाहिए। और इलेक्शन समझना चाहिए कि 2014 के बाद भारत के इलेक्शन कैसे, जब तमाम भाजपा के नेता 2014 के बाद की भारत में आज़ादी मानते हैं, तो उसमें देखे कि चुनाव आयोग इसमें क्या करता है और किस तरह की बिल्कुल, इसमें पूरी जो प्रक्रिया है, जो सवाल उठने चाहिए वो सिर्फ चुनाव आयोग से ही उठने चाहिए। आज भी हमने एक स्टोरी की, जो देवेंद्र फडणवीस ने हमारी स्टोरी के बाद एक रिएक्शन दिया था। उन्होंने बोला था मलाड वेस्ट और राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट करते हुए बोला था कि 25 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे 8% से ज़्यादा वोटर्स में इजाफा हुआ है, उसमें से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस और उसके अलायंस जीते थे। लेकिन हमने पाया कि सिर्फ 17 ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिधर 8% से ज़्यादा एडिशन हुआ था, और उसमें से कुछ 19 ऐसी थी, और जिसमें से 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा
और उसके शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी जीते थे, और बाकी 3 थे, उनमें से एक AIMIM, एक समाजवादी पार्टी और एक एनसीपी शरद पवार। कांग्रेस ने 19 में से कोई भी सीट नहीं जीती थी। बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है समझने के लिए। लेकिन फिर भी जैसे इलेक्शन को समझना चाहिए कि इलेक्शन कहाँ जा रहे हैं, मतलब वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो किस तरह की बातचीत होने लगी है इलेक्शन में। बट चाहे हम ये स्टोरीज कर रहे हैं, बट फिर भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये किस स्केल पे हो रहा है, हमें ये आज भी नहीं पता। मतलब ये क्या चीज़ सिर्फ जैसे महाराष्ट्र में 288 सीट्स है, क्या उसमें से सिर्फ 20 सीट्स पे हुआ है या 30 सीट्स पे हुआ है, हमें वो समझने की जरूरत है। क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये पूरा इलेक्शन ही फज्ड है, तो जैसे लेकिन इसमें एक बात वो चीज़ से कहने से अभी मैं भी थोड़ा कतराऊंगी। नहीं, लेकिन मैं इस पर हम लोग इस पर एक बात तो कर ही सकते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं या पुलिस के पास जाएं या जज के पास जाएं, हम मानते हैं कि ये इंसाफ करेंगे। तो वैसे हम चुनाव आयोग को मानते हैं कि ये फेयर होगा। बिल्कुल, मतलब चुनाव आयोग के ऊपर तो पूरे सवाल उठे हुए हैं इसके, उसमें गड़बड़ी है तो फिर दिक्कत बिल्कुल है। उनको वो एक चीज को लेकर की जरूरत है, जो हमें चाहिए इसके अंदर। क्योंकि जब हमने चुनाव आयोग से पूछा कि फडणवीस तो ये कह रहे हैं, तो क्या इतना एडिशन हुआ है, हम आपका ही डेटा, उनकी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बता रही है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो चुनाव आयोग का जो हमें जवाब था वो ये था कि उनके पास डेटा नहीं है फडणवीस की बातों को वेरीफाई करने के लिए, जो कि यकीन नहीं किया जा सकता ऐसी बातों पे। This is a book which I've just read recently. This is about how to forgive, and this is by Paneet Sachdev. He's a former IRS officer, very honest for that matter. And the foreword is by the Dalai Lama itself. So it's a very transformative book. It helps people. It will help people to guide through any kind of emotional crisis, or so it's it's basically it's a journey of strength and self-liberation kinds. Right. So everyday emotional crisis and the spiritual crisis which people feel. So I think they're a very good book. Right. Thank you, Jatinder. Thank you so much. And lastly, big congratulations to you for winning Chameli Devi Jain Award. Thank you so much, Samita. And you are kind of guiding light to all young reporters. Thank you so much. I'm so glad that I'm still considered is inspiring. Yeah. Part of the young reporters. Who can guide the young reporters? Yeah. You are. We'll always consider you a young reporter. Yeah. और मेरा ये रिकमेंडेशन है, आई थिंक ये जब हमने जतिंदर की स्टोरीज़ की बात करी, पुलिस एक्सेसेस की कश्मीर में, आई थिंक एक स्टोरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है पिछले महीने, जो स्क्रोल में आई थी, सफवत जरगर की, अ बॉर्डर रैन थ्रू इट, द लाइफ एंड लोनली डेथ ऑफ एन 80-year-old कश्मीरी मैन, जिनकी डेथ हो गई थी जब उन्हें पहलगाम अटैक के बाद, जब यहाँ से ये कहे कि लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तानी हैं, तो कैसे इन 80-year-old आदमी की एक डेथ हुई थी। और साथ में ही आप सुनील की स्टोरी एंड जतिंदर की स्टोरी ज़रूर पढ़िए। कैरावैन के वो लेटेस्ट इशू में है, वो आप लेटेस्ट इशू अपने किसी भी नियर बाय मैगजीन शॉप से ले सकते हैं, आप उसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। एंड विद दैट दिस पॉडकास्ट इज एडजर्न्ड। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.